नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। सो चिल्ड्रन, in this video we are going to study about the chapter number 4, that is mangoes round the year. Now from the name of the lesson, the mangoes, and the mangoes, this is one of the fruit which you like most. ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे या बहुत ही लोग कम होंगे कि जिनको मैंगो पसंद नहीं होंगे, बट मैंगो इज वन ऑफ द फ्रूट which is liked by most of the people, and that's why the mango is also known as the king of all fruits. मैंगो को ही सभी फ्रूट्स का किंग कहा जाता है. So children, in this video we are going to study the introductory part of this chapter. First we are going to see the introduction of this chapter. So let's start. Picture of some children. Now here is, wow, Aman's lunch box has sweet puris. Hey, today Nitu has brought potato sabji. Then Priti say, I have got bhindi. But what happens? See, oh Nitu, I think your potato sabji is spoiled. Aman says to Nitu, I think your potato sabji is spoiled. Now see the word spoiled. That's what is meant by spoiled, that we will see in the lesson. और spoiled के बारे में हम तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? Then don't eat that, you may fall sick. Here you take some bhindi. Then Priti gives, or Priti asks to Nitu that you don't eat that which is not good or that is spoiled. So that what you do, you just take bhindi sabji. Okay. So just like in the school, you all brings the different food. Same way here is also the children. They came to school and they bring some food material for lunch. Okay. So what we get from this discussion? This is the discussion between these three children, that is Nitu, Aman and Priti. Now discuss how did Aman know that the potato sabji had got spoiled? Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? Then Priti told Nitu not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? So these are some questions, or that questions, these questions are for the discussion. So you will get the answers of this question in this video. ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है? So let's come to see. So first we are going to study about the content of the lesson, means what are the points we are going to study through this lesson. Number 1, that is what is food spoilage, causes of food spoilage, and one more thing, that is wastage of food. Wastage of food. Wastage of food. The what is food spoilage, और उसके फूड स्पॉइलेज अगर होता है तो क्या उसके कॉज होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, और कंसेप्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड. कंसेप्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड. द नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू फूड स्पॉइलेज. कौन कौन से रीजंस होते हैं जिससे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है जल्दी. नेक्स्ट वन, फूड आइटम्स दैट स्पॉइल क्विकली, और सम फूड आइटम्स दैट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम. रीजन्स टू नो हाउ फूड इज गोइंग टू स्पॉइल. कौन कौन से रीज़न है बच्चों, कौन कौन से कारण हैं
जिस वजह से हमारा फूड जल्दी स्पॉइल होता है. कॉजेज ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड? हमारे बॉडी के ऊपर उसके क्या परिणाम होते हैं. देन कंसेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. Advantages of food preservation. Steps to prevent food spoilage. What steps we have to take to prevent the food spoilage. Steps of making memory tandra and preservation technique using making it, and reading of details even on food packets and about the expiry date. So all these points we are going to study through this chapter. ये सारे जो points है, these points we are going to learn through this chapter. ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं. सो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, वॉच इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, हर बात को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे. ठीक है. सो दिस आर एंड व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ दिस चैप्टर. मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन of this chapter, what target you should achieve. So to know and understand spoilage and wastage of food, to learn how to preserve food, to get the knowledge about preservatives, understand the technique and skill involved in preservation and cooking. कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती है, कौन कौन से स्किल यूज होते हैं. देन नेक्स्ट वन, टू नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. कौन कौन से एडवांटेजेस से फ़ायदे हैं फूड प्रिजर्वेशन करने के. देन टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड. कौन कौन से कॉजेस है स्पॉइल्ड फूड ईट करने के. और हम जब स्पॉइल्ड फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर पर क्या परिणाम होते हैं. क्या क्या समझना है बच्चों में. स्पॉइलेज एंड वेस्टेज. स्पॉइलेज एंड वेस्टेज. देन प्रिजर्व फूड. किस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाता है. प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे फूड में. ठीक है, जिससे हमारा फूड ज़्यादा देर तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर टेक्निक्स और स्किल, कौन सी टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए. ठीक है. देन टू नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. और फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेजेस, फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेजेस क्या है. ठीक है. सो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट टारगेट्स वी हैव टू अचीव. यू नो, you all are watching in our daily life. When you leave a bowl of cooked rice in the kitchen for a day, it starts smelling bad and becomes unfit for eating. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आप बाउल ऑफ कुक राइस का उसको रख दे, पूरे दिन भर उसको खुला रख दे, तो उसका जो स्मेल है वो क्या हो, बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और उसी तरह से इफ़ यू कीप दैट राइस विदाउट बॉयल, विदाउट प्रिपेयरिंग, सो दैट राइस विल बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. सूखा चावल आप उसको स्टोर करके बहुत देर तक रख सकते हैं, लेकिन उसको अगर बॉईल करने के बाद आप उसको ज़्यादा देर तक आप उसको यूज़ कर सकते क्या, नहीं. जैसे सेम वे सम ऑफ द सीरियल्स, सम ऑफ द पल्सेस, स्पाइसेस, वो हम लॉन्गर टाइम के लिए रख सकते हैं. बट सेम वे दैट इज़ मिल्क और मीट एंड फ्रूट्स विच इज़ नॉट, वी आर नॉट एबल टू कीप फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड ब्रेड को आप बाहर निकाल के रख दीजिए 1 या 2 दिन. ठीक है. सो यू विल फाइंड सम ग्रीन और ब्लैक पैचेस ऑन इट, मीन्स फंगस आपको नजर आएंगे. ठीक है. सो दिस थिंग हाउ इट इज हैपनिंग, दैट इज द पॉइजन, और वी कैन से दैट द फूड स्पॉइलेज, उसे कह सकते हैं हम फूड स्पॉइलेज. तो समटाइम वेस्टेज ऑफ फूड इज देयर. अब वेस्टेज ऑफ फूड क्या होता है. सो फूड इज फीड फॉर ईटिंग बट थ्रोन अवे. देन ईटिंग ऑफ दिस फूड विल नॉट कॉज एनी फूड पॉइजनिंग. For example, people taking too much food in the plate and throws away leftover food after their
stomach is full. So lot of time you are seeing the different occasion, the फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिज सेरेमनी है या फिर कोई पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा फूड सर्व तो कर दिया जाता है या बहुत सारा फूड अपने प्लेट में लिया जाता है, बट वी आर टेकिंग लिटिल ऑफ इट एंड रिमेनिंग फूड वी आर जस्ट what we are going to do, throw it. So what is this? If we are throwing the food in a dustbin, means it is what? It's a wastage of food. जो कि फूड फीड था हमारे खाने के लिए बच्चों, बट हमने क्या किया, उसे फेंक दिया. ठीक है. सो ईटिंग ऑफ दिस फूड विल नॉट कॉज एनी फूड एनी पॉइजनिंग, जो कि हमारे लिए खाने के लिए फीड था फूड, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका वेस्ट कर दिया. इसे कहते हैं वेस्टेज ऑफ फूड. लेकिन फूड स्पॉइलेज इज द डिफरेंट कंसेप्ट. स्पॉइलेज ऑफ फूड इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड वेस्टेज ऑफ फूड इज डिफरेंट कंसेप्ट. जैसे कि आपके घर में भी खाना आप अपनी थाली में जितना लेते हो उसको फिनिश करना चाहिए. खाना आप अपने थाली में ले रहे हो पूरा भर के, लेकिन उसमें से थोड़ा ही हिस्सा आप खा रहे हो और बाकी हिस्सा आप अगर फेंक दे रहे हो, तो क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज द वेस्टेज ऑफ फूड. लेकिन ये इस तरह का हमें कभी करना नहीं चाहिए. जितना हमें चाहिए खाना उतना ही हम अपने थाली में ले और उसको फिनिश करें. ठीक है. एंड दिस हैबिट यू जस्ट इनकलकेट इन योर सेल्फ व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट, और होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, या फिर कोई सेरेमनी में या कोई सेलिब्रेशन में आप जाते हो, तो ये आदत अपने अंदर लगानी है आपको कि वट एवर फूड इज रिक्वायर्ड टू यू योर स्टमक, ओनली दैट मच यू टेक. ठीक है. जितना आपको चाहिए उतना ही अपने थाली में परोसना है, और नॉट टू टेक एक्स्ट्रा फूड. ठीक है. जो कि वेस्ट ना जाए बच्चों. ठीक है. क्योंकि वो जितना आप फेंक देते हो ना, उससे एक इंसान की क्या हो सकती है, उस एक इंसान का पेट भर सकता है उतने में. ठीक है. सो दिस थिंग यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड. सो डोंट वेस्ट द फूड. ठीक है. सो वेस्टेज ऑफ फूड. एंड सेकेंड वन इज कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड. कि we feed when a food item is unfit for consumption, then we say that the food is spoiled. अब खाना बन चुका है लेकिन वो खुला था या फिर वो किसी वजह से बहुत समय तक ओपन उसको रख दिया, तो वो क्या हो गया, खराब हो गया. मीन्स दैट फूड इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन फॉर ईटिंग. तो उस फूड को कहते हैं हम स्पॉइल्ड फूड. ठीक है. सो ईटिंग ऑफ स्पॉइल्ड फूड कॉजेज व्हाट, फूड पॉइजनिंग. अगर हम स्पॉइल्ड फूड हम खा रहे हैं तो हमें क्या हो सकती है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है. ठीक है. सो दिस थिंग यू जस्ट रिमेंबर, व्हेन अ फूड आइटम इज नॉट फिट फॉर योर ईटिंग, कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं है बच्चों, तो मीन्स क्या हो रहा है, वो फूड क्या हो गया, खराब हो गया. दैट फूड इज, जैसे कि आप ब्रेड लेते हो, ब्रेड को आप ज़्यादा देर तक आप उसको ओपन रखेंगे ना, सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ पैचेस, ग्रीन और ब्लैकिश पैचेस यू विल सी. जैसे ये क्या है, फंगस है बच्चों. ठीक है. एंड दिस फंगस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. मीन्स दैट इज दैट फूड इज नॉट फॉर ईटिंग, कंजम्पशन के लिए नहीं है. क्या कंजम्पशन करने के लिए है क्या वो फूड, नहीं, वो स्पॉइल्ड हो चुका है. दैट फूड इज टोटली स्पॉइल्ड. सो डोंट ईट दैट स्पॉइल्ड फूड. जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है. ठीक है. सड़ गया वो खाना क्या हो गया, सड़ गया है. और अगर आप उसको खाते हो तो व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी, इट कॉजेज द फूड पॉइजनिंग. इससे क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग से क्या क्या हो सकता है, अब सिम्टम्स क्या क्या है फूड पॉइजनिंग के. सो नंबर 1 दैट इज स्टमक एक, number 2 diarrhea, number 3 fever, number 4 vomiting. So these are the symptoms of the food poisoning. अगर आपने सड़ा हुआ खाना आपके पेट में जाता है बच्चों, तो आपके पेट दर्द कर सकता है, लूज मोशन हो सकता है, देन फीवर हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती है. ठीक है. ये सारे सिम्टम्स आप में नज़र आ सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग, if food poisoning is there. ठीक है. so avoid it to eat. Then so these are the symptoms of food poisoning.
सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्पॉइलिंग द फूड? फूड स्पॉइल होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? क्योंकि वो मॉइस्चर की वजह से हो सकता है ना। मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर है तो भी क्या होगा, ख़राब हो सकता है। ड्राई हो गया उसकी वजह से भी ख़राब हो सकता है। फ्रीजिंग में, ठीक है, एयर में जो चीज़ को जहाँ पर प्रिजर्व करना चाहिए वहीं पे उसको रखना चाहिए, ठीक है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें क्या करती है बच्चों, उस फूड को क्या कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। क्या क्या? मॉइस्चर, देन टेम्परेचर, ड्राइंग, फ्रीजिंग, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर द थिंग्स विच मेक्स द फूड स्पॉइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को पॉइजन या स्पॉइल करने के लिए। और इसके अलावा जनरली फूड मटेरियल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फिर फंगस एंड इंसेक्ट और रैट और रोडेंट, है ना। सो दीज आर ऑल्सो द रीजंस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। और बैक्टीरिया एंड फंगा ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि बैक्टीरिया और जो फंगस होती है वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, उनको अगर जो भी सुटेबल कंडीशन अवेलेबल हो गई जैसे कि एट रूम टेम्परेचर और मॉइस्चर उनको मिल जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या ग्रो हो जाता है बच्चों, बैक्टीरिया और एज वेल एज फंगस ग्रो होती है। जैसे कि आप अपना एक ब्रेड का पैकेट जो है या ब्रेड आप खुला हवा में उसको रख दो, 1-2 दिन तक आप उसको क्या करो, रख दो, तो आपको उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, खुला अगर रख देंगे तो ग्रीन और ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे और उसकी बड़ी गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, क्यों हुआ हो, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ फंगस, सो दिस आर द रीजन विच मेक द फूड स्पॉइल। ये सारे रीजन है बच्चों कि उससे फूड स्पॉइल होता है, ठीक है। सो समटाइम्स these are also the reasons which make the food spoil, that is bacteria, fungus, rats, insect, ठीक है। इनसे भी हमारा फूड क्या हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। सो हाउ डू यू कम टू नो दैट फूड इज स्पॉइल्ड? बाय लुकिंग, बाय स्मेलिंग एंड बाय टेस्टिंग, ठीक है। इन सारी वजह से जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो सकता है। किस वजह से? जैसे कि अभी हमने व्हेन वी स्टार्टेड द लेसन, इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन हमने देखा कि अमन नोज दैट द जो आलू की जो सब्जी थी वो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। उसको कैसे पता चला था? बिकॉज ऑफ सीइंग एज वेल एज स्मेल, उसका जो स्मेल आ रहा था उससे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस वी are knowing that the food is going to be spoiled. So these are the some questions which are you will get the answer from your kitchen, so note down it. So look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days, can be kept for a week, would not spoil till 1 month, ठीक है। अब जैसे 2-3 दिन तक कौन सी चीज़ें स्पॉइल होती है 2-3 दिन के बाद, जैसे कि आप कोई टोमेटोज वगैरह आप रखते हो उसको, तो इट में स्पॉइल आफ्टर 2-3 डेज, ठीक है। जो सॉफ्ट वाली चीज़ें होंगी वो स्पॉइल्ड हो जाएंगी। अब 1 वीक तक आप क्या, जैसे कि ओनियन हो गया, आलू हो गए, 1 वीक तक रह सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्पॉइल ही नहीं होती 1 मंथ तक, जैसे कि आपके घर में चावल हो गया या फिर पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, जो है 1 महीने 2 महीने उससे भी ज़्यादा आप समय तक रखेंगे तो वो स्पॉइल नहीं होती। So look at your friends list and discuss in the class. Will your list the same in all the season? What would change when food gets spoiled in your house? What do you do with it? अगर आपके घर में food spoiled होता है तो आप क्या करते हो? So all this thing you have to just analyze and we will discuss in the next video about this, ठीक है। इसके बारे में हम फिर अगली वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो अप टू दिस यू ऑल आर गॉट माई पॉइंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड
Subscribe the channel for more videos. Thank you so much.